कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं कपिल सिब्बल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Till date in the Galwan Valley, Pangong Tso Lake area and hot springs. Let the nation not forget Colonel B. Santosh Babu and our 19 Jawans have made the supreme sacrifice defending our motherland. Let no one in the central government remain in denial until the Chinese retreat and status quo ante is restored. Our government should not let up or appear to cede any part of these territories to the Chinese. The PM in his address at the all-party meeting in the context of Chinese intrusions across the LAC said, "No one has entered our territories. No one is at present within our territory, and no one has occupied our posts. Our armed forces, our veterans, the families of our martyrs, and every citizen of India wants the government to answer the following questions. 1. Isn't the statement of the Prime Minister an affront to the valor and supreme sacrifice of Colonel B. Santosh and 19 Jawans who sought to evict the Chinese from our territory in Galwan Valley? Does the government mean that their sacrifice was in vain? 2. Is it not correct that China has never claimed Galwan Valley as its territory? Is it also not correct that China has now committed brazen transgressions into Galwan Valley? Number 3. Despite the statement of security experts, army generals, and satellite imagery depicting Chinese intrusions into Pangsong Tso Lake area, up to 8 kilometers, construction of over 60 permanent structures, including bunkers and boat pads, and occupation up to Finger 4. Why is the government denying brazen Chinese aggression? Number 4. Why did the Prime Minister tell the all-party meeting that no one intruded into our territory? Why did the PMO delete these words from the official statement? And if, quote, no one intruded into our territory, close quote, how did our 20 soldiers die? How were 85 Jawans seriously injured? And how were 10 officers and Jawans captured by the Chinese? Why does the statement of the External Affairs Ministry dated 20th of June, that's yesterday, contradict the PM statement on incursions by the Chinese? 5. Why is the PM denying his own Raksha Mantri and EAM statement that Chinese have sought to, quote, erect structures in the Galwan Valley on our side? Why is the PM refuting the statement of Raksha Mantri on, quote, Chinese presence in large numbers, close quote, an External Affairs Ministry statement that we seek to restore, quote, status quo ante, close quote? Didn't the army chief clearly state that, quote, disengagement, close quote, is underway? If no one, quote, if no one has intruded into our territory, close quote, as the Prime Minister said, and, quote, no one is occupying our territory, close quote, as the Prime Minister said, what was being erected by China, or what status quo ante or disengagement were we seeking? It is clear that the Prime Minister's statement on June 19, 2020 is in contradiction of the statements made by the Defense Minister, our Foreign Minister, and our Army Chief. The entire nation solidly stands behind our armed forces and our government at every step, and they will take whatever it takes to defend India's territorial integrity. India's armed forces and the people of India
We'll protect our territorial integrity with all our might. We will never compromise on issues of national security. And the last comment I wish to make is, and that's the question that I put, has not the Prime Minister, in a way, endorsed the Chinese position that they never intruded into our territories? The PM must explain. Thank you very much. Sir, if you could also briefly speak in Hindi, summary इनकी बता दीजिए जी. हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जब ऑल पार्टी बैठक को संबोधित किया तो उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे और सवाल उठ खड़े हुए. उन्होंने कहा कि नो वन हैज एंटर्ड आवर टेरिटरी, कि कोई भी हमारी जमीन पे सरहद के पार कोई भी नहीं आया और आज के दिन कोई वहां है भी नहीं और किसी ने भी किसी को पोस्ट का कब्जा भी नहीं किया. ये बयान जब उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा तो ऐसा लगा हमें कि प्रधानमंत्री जी और जो पीएमओ है वो अपने बयान दे रहे हैं और जो हमारी जो रक्षा मंत्रालय है और जो हमारा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो अपना बयान दे रहे हैं. असलियत तो ये है कि संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू की जान चली गई. असलियत तो ये है कि 19 जवानों की जान चली गई. हमारी धरती सरहद पे हमारी सिक्योरिटी की हिफाजत करते हुए जान चली गई. और अगर कोई घुसपैठिया यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई चीन का सेना कर्मी यहाँ आया ही नहीं था, अगर कोई इंट्रूजन्स हुई ही नहीं थी तो संतोष बाबू को जान क्यों देनी पड़ी और 19 लोगों को, जवानों को जान क्यों देनी पड़ी? ये सवाल उठता है और इस सवाल का कोई जवाब नहीं है. जब जब भी चीन ने हमारे सरहद पार करके प्रयास किया कि हमारी जमीन पे कब्जा करे, 53 साल में जब जब भी ऐसा हुआ, चाहे वो 1967 में नाथुला में हुआ, या चाहे वो 86 में सुमदोरोंगचू वैली में हुआ, चाहे वो 2013 में देपसांग वैली लद्दाख में हुआ, जब जब भी ऐसा हुआ तो हमने कड़ा जवाब उनको दिया. लेकिन अब जो रक्षा मंत्री का बयान है, जो हमारे विदेश मंत्री का बयान है और जो विदेश मंत्रालय का बयान है जून 17, 2020 का और जून 20, 2020 का, वहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के लोग सरहद के पार हमारी जमीन पर आए थे और कई बार आए, एक बार नहीं कई बार आए. अप्रैल से मई 2020 तक गलवान वैली में आए, पैंगसोंग सो लेक में आए, हॉट स्प्रिंग्स पे आए. और अगर ऐसा हुआ और प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि कोई लोग आए ही नहीं, तो क्या हमारे संतोष बाबू ने जान ऐसे ही दे दी? हमारे 19 जवानों ने अपनी जान ऐसे ही, अपनी कुर्बानी ऐसे ही कर दी? ये बड़ी दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बयान दिया कि कोई घुसपैठिया, कोई चीन का जवान हमारे इस तरफ आया ही नहीं और उधर है भी नहीं. तो इसलिए जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्म्ड सर्विसेज हैं, हमारे वेटरन्स हैं, जिन जवानों की मृत्यु हुई, जिन जवानों ने कुर्बानी दी, उनके परिवार अब पूछते हैं कि आप बताइए प्रधानमंत्री जी, क्या चीन ने ऐसा कोई काम किया कि हमारी धरती पे आकर उन्होंने कब्जा करने की कोशिश की? इसका अब हमें जवाब चाहिए. अब हमारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, जो आर्मी के जनरल हैं, जो सैटेलाइट इमेजरी दिखाती है, वो साफ तौर पे ये दिखाती है कि चीनियों ने इस पार LAC के इस पार आकर कब्जा करने की कोशिश की और कब्जा किया. पैंगसोंग सो लेक एरिया में 8 किलोमीटर तक अंदर आए, 60 परमानेंट स्ट्रक्चर्स उन्होंने बना दिए वहां और बंकर बनाए, बोट पैड बनाए और वहां बैठे हुए हैं.
फिंगर 4 के बाद फिंगर 8 तक वहां बैठे हुए हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कब्जा ही नहीं किया, गलवान वैली में कोई कब्जा ही नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, और हमारी 20 जवान, एक कर्नल उनमें से क्यों उनको ये सुप्रीम सैक्रिफाइस करनी पड़ी, और हमारे 85 जवान घायल भी हैं, उनको घायल क्यों होना पड़ा, और फिर 10 जवानों को कैप्चर भी किया, 10 अफसरों को कैप्चर भी किया चीन ने, वो वापस भी उन्होंने दे दिए हैं, वो अफसर वापस भी कर दिए हैं। इसकी जरूरत क्या थी अगर चीन की जो आर्मी है, चीन के जो जवान हैं वो इस तरफ नहीं आए, सरहद के इस तरफ नहीं आए। तो डिफेंस मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है, रक्षा मंत्री की स्टेटमेंट है, जो विदेश मंत्री की स्टेटमेंट है, वो प्रधानमंत्री के बयान से बिल्कुल अलग है। तो हम पूछना चाहते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। सही तो जो हम कह रहे हैं, क्योंकि जब ऑफिशियल वर्जन प्रधानमंत्री की जो ऑल पार्टी बैठक का आया, उसमें से जो वो बयान उन्होंने ऑल पार्टी बैठक को दिया कि कोई टेरिटरी भी उनके कब्जे में नहीं है, वो उन्होंने हटा दिया स्टेटमेंट से। इससे साफ जाहिर है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट गलत था। लेकिन इससे एक और बात उठती है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वही तो चीन कह रहा है। चीन भी तो वही कह रहा है कि हम सरहद के पार नहीं आए, हमने कोई किसी का कब्जा नहीं किया, गलवान वैली तो हमारी वैली है, उस पर तो हमारा कंट्रोल है। अगर प्रधानमंत्री जी भी यही कह रहे हैं तो फिर चीन के लोगों, चीन की जो सरकार है और प्रधानमंत्री के बयान में अंतर क्या है? और इसका फायदा आज चीन उठा रहा है। चीन वहां कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के, उन्होंने खुद कहा है कि चीन के कोई लोगों ने कोई सरहद पार नहीं किया, चीन के जवानों ने, ऑफिसर्स ने कोई सरहद पार नहीं किया और गलवान वैली में नहीं आए। तो हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने जो चीन ने कहा है, आपने वो क्यों कहा जो चीन खुद कह रहा है? और अगर कहा तो बताइए क्यों कहा, इसका जवाब दीजिए, इसका स्पष्टीकरण कीजिए, क्योंकि सारा देश आज ये सवाल आपसे पूछ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हम प्रश्न लेते हैं पहले सुओ मोटो से। पहला रिक्वेस्ट राकेश कपूर जी का है। राकेश जी सवाल पूछे। प्रणव जी, मेरा ऑडियो ही बंद था, मैं सुन नहीं पाया। मैंने अच्छा, मैसेज भी दिया था कि ऑडियो नहीं आ रहा है मेरे पास। ऑडियो मेरे पास आया नहीं। कपिल जी ने क्या बोला? वेरी सॉरी सर, वेरी सॉरी। लास्ट में दो सेंटेंसेस मैंने जरूर सुने, तो सवाल में पूछ लिया था मैंने कल। बात कोई बात नहीं, हम फिर अब आपके पास बाद में आते हैं। बिलाल सब्रवारी पूछना चाहते हैं। बिलाल, पूछिए सवाल। बिलाल, आपकी भी आवाज नहीं आ रही है। तब तक हम दूसरे साथी के पास जाते हैं। आईएनएस से सैयद है। सैयद, आप अपना सवाल पूछिए। सर, आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि प्राइम मिनिस्टर शुड गिव क्लैरिटी स्टेटस को, लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गया है क्या कि व्हाट इज द सिचुएशन इन द बॉर्डर एंड ऑल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने कहा उसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने दिया है। क्या क्लैरिफिकेशन दिया है भाई? उन्होंने तो वो जो उन्होंने बयान दिया था ऑल पार्टी मीटिंग में, वो बयान का उनको बयान से हटा दिया है। क्लैरिफिकेशन हमें ये चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं वही तो चीन कह रहा है। इसका आप स्पष्टीकरण दीजिए। चीन इसका फायदा उठा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे चीन यही कहेगा कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है वही तो हम कह रहे हैं, कि हमारी तरफ से कोई एलएसी का उल्लंघन नहीं हुआ, हमने किसी ने सरहद पार नहीं की, एलएसी का उल्लंघन नहीं हुआ। इसका स्पष्टीकरण चाहिए। धन्यवाद सर। बिलाल जी, कोशिश करिए। बिलाल,
कुछ दिक्कत है आपके कनेक्शन में, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। आप ऐसा करें, प्रश्न लिख कर भेजिए। अच्छा, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। सर, मेरा सवाल ये है सिब्बल सर कि प्रधानमंत्री की ये परिपाटी रही है कि वो फैक्ट्स को डिनाय करके एक अलग तरीके से बात करते हैं और उस पर पूरे देश के अंदर डिबेट होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद के नाम पर देश को भ्रमित भी करते हैं और राष्ट्रवाद के नाम पर प्रधानमंत्री देश को कंफ्यूजन की स्थिति में रखते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या प्रधानमंत्री को सीधे सीधे झूठे प्रधानमंत्री विपक्ष संबोधित कह के पुकारना चाहेगा? नहीं, देखिए, जहां तक उनकी मन की मंशा क्या है उसके बारे में तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता। मैं तो जो उन्होंने बयान दिया है उसके बारे में मैं टिप्पणी कर सकता हूं, और जो बयान उन्होंने दिया है वो वास्तविकता से अलग है। केवल कोई पार्टी नहीं कह रही है बात, ये जो बात है ये रक्षा मंत्रालय कह रहा है, ये बात हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा है, और जो विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट है, जो बयान है, वही ये बात कहता है कि चीन ने LAC का उल्लंघन किया, चीन ने इंकर्शंस की, चीन ने LAC को वायलेट किया, चीन हमारे यहाँ आए, इसीलिए हम डिसएंगेज करने जा रहे हैं, स्टेटस को एंटी करने जा रहे हैं। अगर स्टेटस को एंटी करना है तो इसका मतलब यही है ना कि वो हमारे LAC में घुसे, अदरवाइज स्टेटस को एंटी कहां से होगा? डिसएंगेजमेंट किस लिए होगी अगर वो आए ही नहीं? तो प्रधानमंत्री जी ने ये क्यों कहा, कैसे किया, इसका स्पष्टीकरण तो वही दे सकते हैं ना। मैं उनकी मन की बात तो नहीं जानता। कभी कभार तो वो कह देते हैं, आपको याद है उन्होंने कहा था कि आपको केवल 21 दिन का इंतजार करना होगा। महाभारत की लड़ाई 28 दिन में खत्म हुई, 21 दिन का ही आपको इंतजार करना होगा और ये कोरोना खत्म हो जाएगा। ये भी तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था। अब इसका भी स्पष्टीकरण उनको अब देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने उस समय जब नोटबंदी का ऐलान किया तभी भी उन्होंने कहा था मुझे 50 दिन की मोहलत दे दो, सब ठीक हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री तो अक्सर ऐसा बयान दे ही देते हैं। क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, किस लिए देते हैं, ये स्पष्टीकरण तो वही कर सकते हैं। सर, वही यशवंत सिन्हा ने भी प्रधानमंत्री के बयान पर एक ट्वीट करके ये बात कही थी कि सारी की सारी बहादुरी पाकिस्तान के खिलाफ है, जब चाइना की बात आती है तो मुंह दबा के बैठ जाते हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस पार्टी? नहीं, कुछ नहीं। पहले तो कहते थे कि हमें लाल आंख दिखानी चाहिए, अब कहते हैं कि बातचीत करेंगे। तो जब विपक्ष में होते हैं तो कहते हैं कि सत्ता पक्षी लाल आंख दिखाएं, जब सत्ता पक्ष में बैठे होते हैं तो कहते हैं बातचीत करेंगे। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, समरसॉल्ट क्यों करते हैं अपने बयानों का, ये तो वही बता सकते हैं। धन्यवाद सर। अगला सवाल ANI से सिद्धार्थ पूछना चाहते हैं। सिद्धार्थ, नमस्कार सर। सर, मेरा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी, अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और सत्तारूढ़ दल बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है देश के ऊपर, सेना के ऊपर, और जब स्पष्टीकरण जब स्टेटमेंट आ चुका है तो बार बार सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, और नासमझी भरे बयान राहुल गांधी की तरफ से आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, क्या कहें? ये जो मैंने आज स्टेटमेंट पढ़ा है, इसमें नासमझी की क्या बात है, जरा हमें बता दीजिए। इसमें तो कोई नासमझी की बात नहीं। ये तो हम कोट करके बता रहे हैं कि विदेश मंत्री ने क्या कहा, रक्षा मंत्री ने क्या कहा, विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। और जहां तक बात रही कि देश के साथ हम खड़े हुए हैं, कौन नहीं खड़ा हुआ? पिछले 70 साल में देश के साथ कौन नहीं खड़ा हुआ? ये लोग तो ब्रिटिश एम्पायर के साथ खड़े हुए थे 1942 में। देश के साथ तो RSS के लोग और ये लोग तो तब भी नहीं खड़े हुए थे। और अगर ये हमारे ऊपर ऐसी आलोचना करते हैं तो ये अपने इतिहास से पूछें, ये कहाँ खड़े थे और कब खड़े थे और किसके साथ खड़े थे, जब हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी अपनी कुर्बानी दे रहे थे। तो ये ना सवाल ऐसा पूछें तो वही बेहतर होगा। थैंक यू सर। अगला सवाल तरुण है, टोटल टीवी से। तरुण, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, राहुल गांधी का ये बयान विवादों में है, जो उन्होंने सरेंडर करने वाला बयान PM के
बारे में दिया, आपको क्या लगता है कि ये एक राजनीतिक सरेंडर है कि सैन्य सरेंडर है? देखिए, जहां तक सरेंडर की बात है, आपको कुछ ये बात समझनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर घुसपैठिए, अगर ये लोग, अगर चीन के LAC का उल्लंघन करके लोग गलवान वैली में कह रहे हैं कि ये हमारा उस पे कब्जा है, हमारा हक गलवान वैली पे बैठ होता है, और आप कहते हैं कि कोई इस तरफ आया ही नहीं LAC के, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप हमें बताइए क्या मतलब है इसका। आप खुद ही कह रहे हैं जो चीन कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या उनकी बात आप मानते हैं? नहीं मानते तो आपने ऐसा क्यों कहा? जब आपका रक्षा मंत्री, आपके विदेश मंत्रालय और आपका विदेश मंत्री आपके बयान से अलग बयान दे रहे हैं कि हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम स्टेटस को एंटी की बातचीत कर रहे हैं, हम कहते हैं कि डिसएंगेजमेंट होना चाहिए, और इन्होंने इनकर्शंस किया, और अप्रैल से लेकर मई 20 तक कई बार इन्होंने इनकर्शन किया। ये तो इन्हीं की सरकार की बयान है ना, हमारे बयान तो नहीं है। और अगर इनकी सरकार के जो बयान है वो PMO से अलग बयान है, तो फिर ये आपस में बैठ के इनको क्या तय करना चाहिए कि क्या बयान देना है, क्या नहीं देना। आप सवाल कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्यों उठाते? सवाल तो आप इनके ऊपर उठाना चाहिए। Thank you, sir. We'll move to the next question. Raman Jha from News 24. Raman जी, आवाज नहीं आ रही आपकी? सिंह साहब, सर आवाज आ रही है? हाँ। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जनरल VK सिंह साहब का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से हमें कार्रवाई करनी चाहिए चीन के ऊपर, और एक दो कार्रवाई हुई भी है। रेल मंत्रालय की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट 400 करोड़ का वो खत्म कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि भारत उस स्थिति में है कि चाइना पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध या आर्थिक रूप से ऐसी कार्रवाई करके उसे सबक सिखा सकता है? भाई, ऐसा है कि हम तो अभी सरकार में नहीं है ना, सरकार में तो भाजपा बैठी हुई है। इसका जवाब तो भाजपा को देना चाहिए। अगर भाजपा समझती है कि इस कदम से देश को फायदा होगा तो हम भाजपा के साथ हैं। जहां देश का फायदा होता है और जो सरकार ऐसे कदम उठाती है जो देश का फायदा करे, हम सरकार के साथ रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी को बयान देना चाहिए कि जहां तक हमारी जो आर्थिक संबंध है उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, और इसमें सोच विचार से काम करना पड़ेगा, बयान देना पड़ेगा। क्योंकि कई ऐसे सेक्टर्स हैं, चाहे आपका पेटीएम ही देख लो, उसमें 40% पेटीएम तो अलीबाबा के कंट्रोल में है थ्रू सब्सिडरी। आपका जो पावर सेक्टर है, कई जगह पे जो पावर सेक्टर की सप्लाईज हैं वो भी चीन से आती हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में $7 बिलियन का इंपोर्ट होता है। उस $7 बिलियन में 88% चीन से आता है। अब जब ये आंकड़े देश के सामने आएंगे और प्रधानमंत्री जी के PMO के सामने आएंगे, फिर उनको फैसला लेना पड़ेगा कि क्या ये हिंदुस्तान में हित में होगा या नहीं। और अगर वो समझते हैं कि हित में होगा तो फैसला करें। थैंक यू सर। अब्दुल बारी सिद्दीकी। सर नमस्कार सर, आदाब। हाँ, एक डिफेंस एनालिस्ट का एक आर्टिकल आया है ब्रह्म चैनल का। उनका ये कहना है कि इंडिया की जो चाइना अपीजमेंट जो पॉलिसी है उसके वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उन्होंने 6 साल में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, मोदी जी जिस तरह से जा रहे हैं, जिस तरह से अपील कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट इट हैज हैपेंड। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? देखिए, जहां तक देखिए, आपको याद होगा कि नवाज शरीफ को ये गले मिले, नवाज शरीफ को गले मिलाया और प्रेसिडेंट शी को झूला झुलाया, यही हुआ ना। और फिर उन्होंने बयान दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि जो मेरा शी के साथ जो संबंध है ना वो खास है, वो बहुत खास संबंध है। मतलब कि आम संबंध के जैसे नहीं है, वो आम संबंध प्लस है, ये उन्होंने बयान दिया। अब अगर कोई देश और की कोई भी सरकार अनुभवी होती
वो समझ जाती कि पीठ पे हाथ थपथपाने से और किसी का नाम लेने से और खुद ही बयान देने से कि बड़ी भारी हमारी रिलेशनशिप है, इससे राजनीति नहीं होती। आज के दिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपके प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ कितने अच्छे संबंध हैं? आप कहते हो ना बहुत अच्छे संबंध हैं। क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई बयान आया आपके पक्ष में? क्या दुनिया में किसी देश के राष्ट्रपति का, किस प्राइम मिनिस्टर का आपके पक्ष में बयान आया? बताइए। अगर आप यही बातें सलाह के साथ करते, कुछ हम लोगों को पूछ लेते, शायद हमने देश चला के दिखाया है कि कैसे देश चलाते हैं। पिछले 6 सालों में जिस तरह से आपने देश चलाया और जिस तरह से आज हम इस स्थिति पे पहुंचे हैं कि कोई भी पड़ोसी देश हमारे साथ नहीं है, कोई भी पड़ोसी देश। आज नेपाल लाल आंख दिखा रहा है और आप कहते हैं कि आप बातचीत करेंगे। आज चीन घुस आया तो आप कहते हैं बातचीत करेंगे, और फिर खुद अपनी तारीफ करते हैं कि मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ब्रह्मचलानी ने सही कहा है कि आप जब सत्ता पक्ष में बैठे हुए हो, आपको कूटनीति का और अपनी रक्षा, देश की रक्षा करने का कोई अनुभव ही नहीं है। और जिस तरह से आप बयानबाजी कर रहे हो, उसका फायदा भी चीन को हो रहा है। हमसे पूछ लेते तो शायद थोड़ा बहुत हम आपको बता देते कि क्या करना चाहिए। धन्यवाद सर। We move to the next one. संदीप स्वानकार from वर्तमान। नमस्कार शिवपाल जी, मैं संदीप बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। मेरा 2 क्वेश्चन है, एक सुओ मोटो पे है और एक दूसरा है। सुओ मोटो पे जो है, जो पीएम साहब ने, ऑनरेबल पीएम साहब ने जो ऑल पार्टी मीटिंग में बोला कि नोबडी एंटर और कोई भी घुसे हुए भी नहीं है, लेकिन एक बार भी उन्होंने डायरेक्टली चीन का नाम नहीं लिया। तो क्या उन्होंने चीन से डरते हैं? और जो जैसे चीन से जैसे ये फेल हो रहा है, जो ऑपोजिशन को कहना है, तो आप क्या चाहते हैं कि या आपके मुताबिक या स्पॉट पे एक ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाना चाहिए और चीन में भी जाके बात करना चाहिए? एक तो ये सुओ मोटो पे है, दूसरा है ये पहले मैं इसका जवाब दे दूं, फिर दूसरा पूछ लेना आप। ओके। जहां तक डेलीगेशन जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये तय तो प्रधानमंत्री जी करेंगे, हम थोड़ी ना कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री जी और उनके जो सरकारी कर्मी हैं जो खुद चाहते हैं कि बातचीत हो रही है, जनरल लेवल पे बातचीत हो रही है, डिसएंगेजमेंट की बातचीत हो रही है, तो इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, ना मुझे या ना उचित है मुझे किस कहना है इसके बारे में। तो पीएम ने डायरेक्टली चाइना का नाम क्यों नहीं ले रहा है? नहीं, बात ही चीन के बारे में हो रही थी, सारी बैठक की चीन के बारे में थी। नाम लें या ना लें, जो उनका बयान था वो स्पष्ट था। ओके। और जो अदर क्वेश्चन है वो है कि लगातार 15 दिन से पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ रहे हैं। 15 दिन में पेट्रोल के दाम 8 रुपया 88 पैसा बढ़ गए और पेट्रोल डीजल का 7 रुपया 97 पैसा, जो कि हाईएस्ट भी है। तो इसी का ऊपर कांग्रेस पार्टी को क्या कहना है? अरे मैं तो इसके ऊपर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ, शायद आप पिछली बार आप थे नहीं, जब 2 रुपए के दाम, अभी तो पीछे हाल ही में 2 रुपए के दाम बढ़े हैं ना पर लीटर जी। इससे पहले मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ इसके बारे में और आंकड़े देकर बता चुका हूँ कि किस तरह से हमारे टाइम में जब पेट्रोल क्रूड ऑयल का दाम 108 रुपए था, किस भाव पे हम बेच रहे थे, जो आज $38 पर बैरल है, किस भाव पे बेच रहे हैं। तो वो जो सारा फायदा हो रहा है वो सरकार, क्योंकि उनके पास कोई पैसा वैसा है नहीं खर्चा करने का, तो इसीलिए वो टैक्स लगा रही है, आम आदमी के ऊपर टैक्स लगा रही है महामारी के बीच में। तो इसके बारे में पूरा मैंने बयान दिया था, शायद आप। मैडम सोनिया गांधी भी चिट्ठी लिखकर रोल बैक करने के लिए लिखा था। जी सर, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने पिछली दफा और उसके बाद
ये रिकॉर्ड है कि हर रोज सरकार ने जो है दाम बढ़ाए हैं पेट्रोल डीजल के। सर, हम सवालों का फेहरिस्त हमारा खत्म हो गया है। आपकी अनुमति हो तो हम कंक्लूड करें। उम्मीद से कि सरकार आपके प्रश्नों का संज्ञान लेगी और जवाब देगी कि क्यों प्रधानमंत्री और चीन जो है briefly sir briefly say in English about Brahma Channel's articles. As far as Brahmachalani is concerned, he has in a way rightly said that in the situation that we are in, the Prime Minister expresses the kind of friendship that he has with President Xi, and of course even with Pakistan, with President Nawaz Sharif when he called him here. But the kind of policy that we have on our borders is not a policy which seeks to protect our strategic interests. And in this context, he has called, it is not I, he has called this is a policy of quote unquote surrender, is what Brahmachalani says. Now it is for you to decide in the context of what has happened in the recent past, especially the multiple occasions on which they have entered across the line of control in the Galwan Valley and the Pangsong Lake area, as well as in Hot Springs, and have control of beyond finger 4 up to finger 8. And the fact that the Prime Minister has now said that nobody has intruded into our territories, Brahmachalani thinks that this is really an act of quote unquote surrender. It's for you to judge whether it is or not, but that's what he says. Thank you, sir. That brings us to the end of the briefing. Thank you very much for taking out time, sir. Thank you everyone for joining. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thanks a lot. तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आप सुन रहे थे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता यहाँ पर सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए चीन के मुद्दे पर घेरा उन्होंने केंद्र सरकार को और पूछा कि आखिर चीन विवाद में क्या सरकार छुपा रही है। साथ ही ये भी कहा कि पीएम के बयान और विदेश मंत्रालय और गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री के जो बयान है वो अलग अलग आए हैं। साथ ही ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया था उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन की भी यहाँ पर डिमांड कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी ने की है।